میرے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری فہیمہ عوان. آج اتنے دنوں کے بعد ملین سے ملاقات ہو رہی ہے ہمارے شو پہ. کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. اور پیاری ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ عورت اتنا بڑا پازیٹیوٹی کا گولا ہے نا, یہ آتی ہے ہر چیز زبردست پیاری پیاری پازیٹیو ہو جاتی ہے. بالکل ایسی. ہمارے سے ڈاکٹر عائشہ عباس موجود, نیوٹریشن سے, آپ لوگ جانتی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ. شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شیف فرح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مدیہ؟ بالکل ٹھیک. شیف فرح, آپ نے جو لاسٹ ٹائم بنائے تھے نا شکرکندی کے کباب, کیا میسو ہٹ تھے بھائی. شکرکندی کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بہت اچھے بنائے تھے, ہم نے ٹرائی بھی کیا تھا, بہت مزے کے بنے تھے. اور آج بہت عرصے کے بعد ہمارے ساتھ شیف شازیہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے جناب. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شیف حضرات ہیں ان پہ زیادہ برڈن ابھی آنے والا ہے رمضان مبارک میں. وہ تمام تر خواتین جو اپنے گھروں کو دیکھتی ہیں, چلاتی ہیں, سب پہ میں بوجھ نہیں کہوں گی, بٹ ہاں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جو ذمہ داری وہ بڑھ جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں, رمضان مبارک کی تیاری آپ کے بچپن میں کیسی ہوتی تھی جب رمضان مبارک شروع ہونے والے ہوتے تھے؟ کیا ہوتا تھا بچپن میں؟ مدیحہ یہی ہوتا تھا کہ امی صفائیاں کر رہی ہیں, امی سموسے پہلے سے بن رہے ہیں, رول بن رہے ہیں, اور میں یہ ساری چیزیں نا سن رہی ہوتی تھی. اور ٹی وی میں یہ بھی سن رہی ہوتی تھی کہ رمضان میں جو عمرہ کرتے ہیں لوگ اور اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. تو بچپن سے میں بولتی تھی, میں نے کہا میں عمرہ کرنے ضرور جاؤں گی اور رمضان میں ہی جاؤں گی. سو وہ بھی مائنڈ میں تھا. اور اس کے بعد پھر جب بڑی ہوئی تو رمضان میں ہی گئی عمرہ کرنے کے لیے. تو سب نے مجھے منع کیا, سب نے مجھے کہا کہ نہیں رمضان میں نہیں جانا چاہیے, بہت رش ہوتا ہے وہاں پہ. تو میں نے کہا نہیں, میں رمضان میں ہی جاؤں گی. اور میں رمضان میں گئی, اور کہتے ہیں نا حج کا ثواب ہوتا ہے. اوف, وہ جو میری میموریز ہیں امیزنگ کہ آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی نیکی کا ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے. پھر تاک راتیں وہاں گزارتے ہیں, تو وہ ہے نا, وہ تو ایک مطلب مجھے لگتا ہے پورا شو ختم ہو جائے گا اور میری پوری نا جرنی ختم نہیں ہوگی. وہ میری جو لولی میموریز ہیں, امیزنگ. خیر وہاں سے سوچا اللہ کے گھر جاتے تو پھر اللہ پاک آپ کی مہمان نوازی اپنی شان کے مطابق کرتا. پھر رمضان میں مہمان نوازی, رمضان میں سب سے خوبصورت مہینہ, سب سے خوبصورت. مطلب آپ مکہ جائیں, وہاں الگ ایک اہتمام ہوا ہوتا ہے آپ کا, کہ آپ کا افطار کے لیے اہتمام ہوا ہوا ہے. مدینہ جائیں, وہاں الگ آپ کا اہتمام ہوا ہوا ہے. اور رونق کی آپ کو سحری کی الگ مزے چل رہے ہیں, اور افطاری کے الگ. میں تو یہی کرتی تھی, گھر میں ہوتی نہیں تھی, وہیں سحری وہیں افطاری. میں میری بھانجی ہوتی ہے مدینہ میں, تو وہ کہتی تھی خالہ کہ ابھی نہیں چلیں گے. میں کہ نہیں, مجھے آپ چھوڑ دیں یہیں, آپ لوگ جائیں, آپ لوگ چلے جائیں. سو اتنا مزہ آیا. سو وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے, اس وجہ سے نا مدیحہ وہاں اب میں بھی ڈری ہوئی تھی کہ اب رش میں جاؤں گی, اب کیا ہوگا, کیسے کروں گی, اندر فیئر ہے, اب چلنے کی جگہ نہیں. بالکل لوگ اتنے پاس ہو کے آپ کے چل رہے ہوتے ہیں. سو وہاں میں نے ایک عورت دیکھی, 90 سال کی تھی مدیحہ, 90 سال کی, اور وہ عورت اپنے پیروں پہ چل رہی تھی. وہ بوڑھی سی جو خواتین تھی. اچھا میں ان کو دیکھ رہی ہوں, ان کو نوٹس کر رہی ہوں, اور نوٹس کرنے کے بعد ایک اور لیڈی آئی اور انہوں نے ان کو سہارا دیا, اور وہ سہارا دے کے ان کو چلانا شروع ہو گئی. تو میں نے کہا یہ میرے دل میں بات کیوں نہیں آئی کہ میں ان کو سہارا دیتی اور میں ان سے نیکیاں لیتی. اور میں صرف یہی سوچوں کہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم رمضان میں نہیں جائیں گے, بہت رش ہوتا ہے, لیکن یہ تو نہیں ڈر رہی ہیں. یہ تو اپنے توکل سے اور محبت سے, اور ان کے اندر اتنی خوشی تھی, جس طرح وہ دعائیں پڑھ رہی تھی, میں تمہیں نہیں بتا سکتی ہوں. اللہ پاک جلدی سے آپ سن رہے ہیں, اللہ پلیز ہمیں دوبارہ اپنے میں یہی سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلا لیں, مجھے رمضان میں آنا ہے پھر سے انشاءاللہ. زبردست. مجھے آپ بتائیں ڈاکٹر عائشہ, آپ کے بچپن میں رمضان مبارک کی آمد کی تیاریاں کیسے کرتے تھے؟ بچپن میں رمضان المبارک کی تیاریوں میں بہت زیادہ اٹریکشن تو یہی رہتی تھی عید کے کپڑوں کی, اور یہ کہ پہلے سے عید کے کپڑے سارے بن جائیں. اور یہ اچھی بات ہے, آپ ان لوگوں میں سے تھی جو کہ رمضان سے پہلے عید کے کپڑے وغیرہ کر لیتے تھے. ہاں سب کچھ, دیکھیں نا, یہ اچھی بات ہے, آرگنائزڈ چیزیں کرنی چاہیے. ہاں پہلے سے کرنا ہے, سب کپڑے وغیرہ سب کچھ. اور دوسرا یہ کہ ہماری امی بہت وہ تھیں لائک اللہ والی, اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی بہت مغفرت کرے تو دینا دلانا اور یہ سارا. تو ان کو یہ بہت ہوتا تھا کہ مجھے جتنے جوڑے نکالنے ہیں وہ اپنے امی ابا کے نکالتی تھی, ہمارے نانا نانی کے, ساس سسر کے, تو وہ سب نکالنا. تو میں امی کے ساتھ پیش میں گھر کا سب سے ایکٹیو بندہ, جس کو جو ہے ہر جگہ جانا بھی ہے اور سب کچھ کرنا ہے, تو وہ امی کے ساتھ جانا. پھر بڑی بیٹی تھی, میں سب سے بڑی, تو وہ ان کے ساتھ, تو یہ سارا کام ہو جاتا تھا پہلے. اور گھر کی صفائی ستھرائی کا, کہ اگر کوئی کلر کروانا ہے یا اگر کوئی صوفوں کی چیز وغیرہ ہے, کیونکہ رمضان میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ آف کورس اتنے انرجیٹک نہیں رہتے, آپ کا تھوڑی انرجی لیولز کم ہو جاتے ہیں نا, آپ اتنا زیادہ بھاگ دوڑ کے کام نہیں کر پاتے آپ کو. اور دوسرا آپ کا فوکس جو ہوتا ہے نا
ना वो उस वक्त मेनली यही होना चाहिए, इबादत वाला। बिल्कुल, इट्स नॉट एक्चुअली शॉपिंग एंड स्टफ, बिकॉज शुरू से हमें बताया है हमारी अम्मी ने कि जो फरिश्ते होते हैं ना वो आसमानों से बिल्कुल बेटे नीचे आए हुए होते हैं और उनके हाथ में टॉफियां होती हैं और वो टॉफियां बांट रहे होते हैं। तो तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा और ये अपना टाइम नहीं जाया करना। ओह माय गॉड, लेकिन बच्चों को उनके मुताबिक समझाने के लिए वो टॉफियों वाली बात उनकी एक होती थी, और दूसरा वो हमेशा ये समझाती थी कि जो साल के 12 महीने होते हैं ना, 11 महीने एक तरफ होते हैं और ये एक महीना एक तरफ, ये बिल्कुल अलग है। तो वो चीजें दिमाग में ऐसी बैठ गई, फिर ये टॉफियों वाली बात जहन में ऐसे बैठ गई। बच्चों के लिए तो ट्रॉफी बड़ी मान लेती है। अच्छा मैं देख रही हूँ जनाब इस वक्त सामने हमारे सबा फैसल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सबा आपा। वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए भी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप तो आज पिंकी बन के आई हैं सबा आपा। मैं और आप, ओहो बिल्कुल बिल्कुल, मैचिंग में हो गया आज हमारी। आ जाते आप जो स्मार्ट हो गई है ना माशाल्लाह, एक हाइट और एक स्मार्टनेस। आ जाइए। अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तब आप आई एम श्योर कि वहाँ जब खड़ी थी आप गुफ्तगू भी हमारी सुन रही थी। जी। आपके बचपन में वैसे क्या रमज़ान की तैयारियाँ होती थी? अच्छा, बचपन का रमज़ान तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, हमारे यहाँ ये था कि रमज़ान से पहले जो रजब और शाबान होता था उसकी बहुत ज़्यादा इबादत की तलकीन की जाती थी। बिल्कुल बहुत, क्योंकि रजब का महीना और फिर उसके बाद शाबान का महीना, इसमें कितनी बरकतें हैं, कितनी इबादत की रातें हैं और फिर कितने आप रोज़े रख सकते हैं। तो आपकी एक प्री रमज़ान तैयारी जी हाँ शुरू हो जाती है। तो वो मम्मी हमेशा कहा करती थी कि अब बस रजब का महीना आ गया है, अब रोज़े रखो छुटे हुए और इबादत रातों की। उसके बाद फिर जब रमज़ान आता था तो हम लोगों की प्रैक्टिस होती थी। एक होता है ना, पहला रोज़ा है तो बस सब गिरे हुए हैं, हमारी वो इजी हो जाती थी। तो वो आप प्रैक्टिस में होते थे। और बचपन का रमज़ान तो जब माँ सहरी में दस्तरखान पर हो और इफ्तार पर माएँ जब दस्तरखान पर हों तो वो इतनी खूबसूरती होती है। तो अब मैं सोचती हूँ कि यही खूबसूरती हमारे बच्चों के लिए भी है। लेकिन मेरे मामले में ज़रा मेरे बच्चे ऐसे रहे कि मेरे कराची में ही ज़्यादातर रमज़ान गुजर जाता है। और लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आखिरी अशरा जो है वो उधर गुजारूं और उसमें जो भी ताक राते हैं आपके। लेकिन मैं कभी एतकाफ़ पर नहीं बैठी। अब मैं सोचती हूँ कि अब ये भी करना चाहिए। तो बचपन के जो रमज़ान थे वो बस अपने बहन भाई, और इतना भरा पूरा घर था, 6 बहन भाई, और लड़ाई झगड़े करते हुए सहरी की जाती थी, लड़ाई झगड़े में इफ्तार होती थी। आजकल बच्चे बड़े तमीज़ तरीके से बैठते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ मोबाइल देखना आपस में खामोशी से इंटरेक्शन ही नहीं होती है। हाँ, तो ये फर्क है। जब फिर आप बल्कि बहुत मिस करते हैं कि जब आप ऐसा भरे घर से आप जब आपकी शादी होती है आप चले जाते हैं, फिर आप वो नोक झोंक भी इतनी मिस करते हैं। बहुत मुझे बचपन के रमज़ान की एक और बात बड़े उससे याद है। हमारे दादा थे और वो हमारे साथ ही रहे हमेशा। तो उनको ना हम तीनों बहनों से और मेरी अम्मी से, बेटियों से उनको बहुत प्यार था। बेटों को कहते थे पीछे हटो भाई, बेटियों के सामने कोई कुछ नहीं है। तो कभी भाइयों को डांट पिटवानी होती थी ना तो हम जाके छूटी शिकायत दादा अबू से। तो रमज़ान में सब रोज़ा रख के तो सो गए। अब मुझे पता नहीं मेरे दूसरे भाई ने कुछ तंग किया क्या, और मैं गई और मैंने जाके दादा अबू से कहा कि देखें अभी मैं रोज़ा रख के सोई हूँ और इसने चादर हटा दी है, क्या कुछ पता नहीं क्या। दादा अबू उठे, उनकी एक छड़ी होती थी, उन्होंने छड़ी उठाई और जाके बिस्तर पर ही मारना शुरू कर दिया भाई को। अब बेचारा रोज़ा रख के सो रहे थे भाई, कहते दादा अबू क्या हुआ, तुमने ये किया सब? उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। और मैं पीछे से कह रही हूँ नहीं दादा अबू इन्होंने नहीं कहा, ऐसे उस दूसरे वाले भाई ने कहा। उन्होंने सुना कि पीछे हट जाओ आज इसकी शामत आएगी। दादा को कभी देखा रमजान में ये चीजें भी बहुत हुआ करती थी ना, क्योंकि सब बहुत इकट्ठे होते थे, सब बहुत इकट्ठे होते थे। वाकई बड़ी बड़ी खूबसूरत बचपन की यादें होती हैं। आप शफरा, आपकी वैसे क्या यादें? हमारी तो यादें बहुत अच्छी हैं क्योंकि हमारी अम्मी तो पहले तो सफाइयाँ घर की होती थी। अच्छा, ये शाबान के ये जो दिन चल रहे हैं ना, तो हमारे घर में एक बचपन से चीज़ थी और आज अब मुझ में भी आई ये चीज़। हमारी अम्मी का था कि अपनी हैसियत के मुताबिक पहले एक लिस्ट बनती थी। हमारे घर का राशन नहीं आता था पहले एक लिस्ट बनती थी फैमिली में
अड़ोस पड़ोस में किसको देना है। पहले कुछ कम लोग थे, फिर उसके बाद थोड़े 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 अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी है। मेरी अम्मी का मेरे अब्बू का यही होता था कि देखो हम लोग तो कुछ भी करके खा लेंगे, लेकिन इनको देना बहुत ज़रूरी है। पूरे साल की कमाई है वो हमने निकालना है। हम सबको अपने घर पे नहीं इफ्तार पे बुला सकते, तो हम अपने घर जो कुछ चीज़ें हैं उनको भिजवाएं, वो खाएंगे तो हमें सवाब होगा। तो ये चीज़ मैंने बचपन से देखी है, ये तो चीज़ होती है। लेकिन इसके अलावा क्या होता था कि मेरी अम्मी क्या करती थी कि समोसे बनाती थी तो पूरे महीने की नहीं बनाती थी, वो एक हफ्ते के बनाती थी। वो कहती थी अगर मैंने एक साथ एक महीने के बना लिया ना, टेस्ट एक ही होता है, फिर हम वो थोड़ा सा ना वो हो जाता है कि ये टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। एक हफ्ता 10 दिन के बाद दोबारा बनते थे, उसमें टेस्ट थोड़ा सा फर्क आ जाता था। तो वो इसी तरह से बनाती थी, तो मेरे अंदर भी ये चीजें आई हैं। शामी कबाब भी बना ली, कुछ और रोल वगैरह भी बना लिए। तो मैं पूरे महीने के नहीं बनाती, क्योंकि वो फिर घर वाले खा खा के तंग आ जाते हैं। मतलब है रमजान में भी आपका किचन जो है वो ज़्यादा जैसे बिल्कुल फ्राइड, जितने भी कोई डाइट कर ले, लेकिन फ्राइड चीजें थोड़ी बहुत तो रहती है हमारे यहाँ। तो ये तैयारी है। अच्छा, लहसुन अदरक को थोड़ा थोड़ा करके एक एक हफ्ते का पीस लिया। महीने का तो हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है ना पीसने का, ठीक है, कि फ्रेश होना चाहिए रमजानों में। तो ये तैयारी हो जाती है। जाए नमाज को अच्छे से धोकर इत्तर लगाया जाता है। जैसे बहुत ये वाली तैयारियां जो होती है ना, बहुत ही बेहतरीन होती है। और कुरान शरीफ को जितने भी, क्योंकि हम एक दो पढ़ते हैं, बाकी रखे रहते हैं, उन सबको फिर अलग से रखना, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं। और सबको होता है कि तुमने निशानियां लगाई होती ना कि आज हमने मैं बताऊं, मेरे अब्बू भी ये बोलते थे कि चाहे तुम एक सफा कुरान शरीफ का पढ़ो या 2 पढ़ो, लेकिन तर्जुमा के साथ पढ़ो। तो ये हमारे लिए जरूरी था। ये दौड़ नहीं लगाई जाती थी किसने एक कुरान खत्म किया, किसने 2 किया, किसने 3 किया। ये दौड़ हमारे घर में नहीं होती थी। जो भी पढ़ो तर्जुमा के साथ पढ़ो। ये प्रैक्टिस हमारे वालिदैन ने हमें दी है, क्योंकि जितना समझ के पढ़ेंगे उतना सवाब मिलेगा आपको। आपकी शाजिया? एग्जैक्टली जैसे सब लोगों ने बातें जो बोली उससे मिली जुली मेरी भी ऐसी ही हैं। एग्जैक्टली मेरी मदर भी काफ़ी ज़्यादा ना जैसे अल्लाह वाली थी, जैसे इन्होंने बताया था आयशा ने। तो वो तैयारी पूरी रमज़ान की सबसे पहले ये होती थी कि ज़कात निकाल, थान के थान आते थे कपड़ों के कि वो बांटने हैं। और इसी तरह मेरे भाई के घर में भी, मतलब ये बचपन का बता रही हूँ आपको, ज़कात का सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता था। फिर उसके बाद जो हमने प्रिपरेशन करनी है, अम्मी ने करती थी कि जो रमज़ान के लिए बनाने समोसे रोल, वो पहले से ही सब चीज़ें तैयारी करके फ्रीज़ करके, ताकि इजी रहे बाकी रमज़ान में। और वो बस ये बोलती थी कि कुरान पढ़ना, उनकी बस ये होती थी कि खाने पे इतना फोकस नहीं करो ज़्यादा, तुम लोग कुरान पढ़ो, इबादत करो, रोज़े रखो। तो ये नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए रोज़ा है, कि बस अच्छी अच्छी डिशें बन जाएं। और हम लोग तो ऐसे होता था, मुझे याद है कि मेरी अम्मी, अब बस पिछले महीने उनकी डेथ हुई है, तो मुझे इतना दिल मतलब उदास सा हो गया सोच के कि पहला रमज़ान आ रहा है। हाँ, अम्मी नहीं होंगी मेरी। तो वो जो है ना, हमें एंड टाइम पे, हम जो छोटे थे ना स्कूल जाते थे, तो उठाती रहती थी, उठ जाओ सैरी कर लो सैरी कर लो। जब टेबल पूरी सज जाती थी ना, तो हम नींद में उठ के आते थे, कुल्ली करके बस सैरी की और फिर वापस बिस्तर में चले गए, ऐसे ना बल्कि नमाज़ पढ़ के। तो वो याद आता है कि बचपन का एक, जैसे आपके शो में मुझे एकदम वो हो गया नॉस्टैल्जिया के बहुत अच्छे दिन होते थे बचपन के। मैं चूरी बनाती थी वो, अब मुझे चूरी बहुत अच्छी लगती है। तो लेकिन अब कभी खुद बनानी पड़ती है, तो गरम गरम रोटी पे बिल्कुल आप तवे से उतरी है, उसके बाद देसी घी डाल के पे शक्कर डालना। तो जब एक बार मैंने बनाई तो मैंने कहा अम्मी आपके कितने हाथ जलते होंगे। और अम्मी के सब बच्चों का, अम्मी हमने कुछ पराठा नहीं खाना, बस चूरी खा लेंगे। माँओं का तो कह सकते हैं कि माएँ अनमोल होती हैं ना। समझ जी, आपकी पहले जो रोजे की मेमोरी है याद है? मुझे वैसे याद नहीं है कि मैंने किस उम्र में रखा था, लेकिन आपको बच्चों के पहले रोजे तो अच्छे से याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। और फिर बच्चे जो उनका चेहरा देखकर कि ये तो बहुत ही स्कूल से आया है और ये बहुत मुरझाया हुआ है, तो मैं खुद कहती थी बस हो गया रोज़ा ना, थोड़ा सा कुछ खा लो। तो बच्चे कहते थे कि नहीं हमारा रोज़ा है। तो जैसे हमारे बचपन में भी होता था कि 12 बजे का रोज़ा। इसके बाद ये जो माएँ थी, मेरी अम्मी भी बेचारी करने की कोशिश करती, बेटा चिड़ी रोज़ा। आपने भी अपने बच्चों के साथ चिड़ी रोज़ा किया? और बच्चे नाराज होते थे कि क्यों आप हमारा रोज़ा इस तरह से करती रही हैं अब तक। मतलब बचपन में, मैं फिर बाद में जब बच्चों को समझ आ गई कि ये तो अम्मा, तो माओं के दिल ऐसे ही होते हैं ना। लेकिन मैंने बड़ी माएँ ऐसी सख्त भी देखी हैं, वो नमाज के लिए, अब मेरी बहन की बेटी है, वो तो ऐसे उठेगी नमाज के लिए, साथ बच्ची को कि चलो आयरा खड़ी हो जाओ, अम्मी अभी इसको चलो फौरन। तो मैं कहती थी अल्लाह उससे थोड़ा सा आराम कर, नहीं इसमें कोई आराम नहीं। तो आजकल माएँ बड़े सख्ती से भी कहती हैं, हम लोगों ने इतनी सख्ती नहीं की, हमारी माओं ने भी नहीं वैसे इतनी सख्ती की।
लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसा वैसे होना चाहिए सख्त। मैं अक्सर कहती हूँ ना कि वो मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं चाहे सारी रात भी जागी हूँ, मैं अब सुबह जाग जाती हूँ, क्योंकि अम्मी कहती थी दो देखा बेटा रहमत की फरिश्ता। अच्छा अम्मी मेरी पंजाबी थी ना, तो वो पंजाबी में थोड़ी सी सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करती। अम्मी कहती थी तुम लोग सोते रह गए, 9 बजे उठे हो, रहमत के फरिश्ते ने बेटा तुम लोगों को लाने भेज के चले गए। हमें लाने क्यों भेज गए? ऐसे छोटे थे तो अभी भी ऐसा मुझे लगता है कि फरिश्ते नाराज चले गए। तो वो अम्मियों की सख्त बातें मुझे लगता है अच्छी भी होती है। छोटी सी ब्रेक ले रही जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।